Good morning students, welcome you on your English online classes, and today's is the revision class of the first chapter in your English reader. So beta, before starting the revision of this chapter, I want to tell you about the author and the characters of the story. As you know beta, जैसा कि आप जानते हैं, these are the main characters of the story, and what is the role of these characters in the chapter you know very well, but I want to tell you about the role of Monsieur Manning, Monsieur Defarge, Mr. Lorry and Miss Lucy. Before starting the explanation of the characters of the story, first of all, I want to tell you about the shoemaker. Beta, the title of the story is appropriate. जो स्टोरी का टाइटल है वो बिल्कुल appropriate है. क्यों है? Because जो मॉन्सियर मैनिक है वो अपने पास्ट टाइम में बेटा in his past time he was a doctor by his profession. Monsieur Manning was a doctor in his past time by his profession, but from many circumstances, due to French Revolution, he was imprisoned and he had lost his memory, and in the prison he learned about a new trade, that was what was the new trade beta? That was shoemaking. तो बेटा ये जो ट्रेड था उन्होंने प्रिजन में सीखा, जहाँ पर वो इम्प्रिजनमेंट हुए, जहाँ उन्हें इम्प्रिजनमेंट किया गया. तो इस वजह से चैप्टर का नेम, फॉर दिस रीजन चैप्टर टाइटल इज एप्रोप्रिएट. सो The Shoemaker is written by Charles Dickens. What is the name of writer beta? What is the name of author? Charles Dickens. Charles Dickens beta was born in 1812 and he was died in 1870 in England. इनकी जो बेटा डेथ हुई वो इंग्लैंड में हुई 1870 में, एंड इनकी जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है वो 1812 है, एंड ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड. हिज फादर वॉज इम्प्रिजन्ड व्हेन चार्ल्स वॉज 12. जब चार्ल्स बेटा ओनली 12 ईयर्स ओल्ड के थे तब इनके फादर को भी क्या कर दिया गया? इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब वो जेल में डाल दिया गया. एंड ही हैड टू वर्क एट दैट टेंडर एज, और उस छोटी सी उम्र पर, छोटी सी अवस्था में 12 ईयर ओल्ड, जब बच्चे की पढ़ने की, ही वांट टू एजुकेट, ही वांट टू स्टडी, ही वांट टू रीड, ही वांट टू प्ले, है ना, ही वांट टू एंजॉय. जब वो पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, लाइफ को जीना चाहता है, ही विशेष टू लिव द लाइफ विद हैप्पीनेस, बट एट दिस एज चार्ल्स डिकेंस had to work hard. लेकिन उस उम्र पर चार्ल्स डिकेंस को बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ा. He experienced the pain of poverty and this helped him become the voice of the poor and working class. He felt the pain. उन्होंने पेन को फील किया, महसूस किया. He felt the pain of poverty and he became the voice of working class. और वो किसकी आवाज बने? Working class means liberal. Some of his popular books, उनकी कुछ पॉपुलर बुक्स भी हैं. There are names of his popular books: David Copperfield, Oliver Twist, A Christmas Carol and A Tale of Two Cities. Now beta, A Tale of Two Cities
दिया गया है। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड द थीम ऑफ द चैप्टर इज हिस्टोरिकल। आफ्टर इट दिस चैप्टर दिस novel is set in London and Paris during the France Revolution. There was a war in England and Monsieur Manic was imprisoned due to war and he had lost his memory and he had lost about his past in the story. Monsieur Defarge. Monsieur Defarge is a servant in the story of Monsieur Manic. ये जो Monsieur Defarge जो है वो कौन है? सर्वेंट। सर्वेंट है बेटे। किसके सर्वेंट हैं? Monsieur Manic in the story. A faithful servant. A faithful servant of Monsieur Manic, but not in present, in the past. अभी नहीं है, past में थे. But he is a faithful servant and he never forgot his master. So he always thinks welfare of his master. Mr. Lorry is the friend. Mr. Lorry, friend of Mr. Manic. Mr. Lorry जो है बेटा वो Mr. Manic के कौन थे? फ्रेंड थे। कौन थे बेटा उनके? फ्रेंड, a real friend. And now Lucy, his daughter. Whose daughter is Lucy बेटा? Whose daughter is Lucy? Lucy किसकी बेटी थी? Whose daughter was Lucy बेटा? Yes, Monsieur Manic. So now बेटा you understand about the characters of the story. Monsieur Manic is the shoemaker in the story. He is the shoemaker and Monsieur Manic is the shoemaker in the story and he was also a doctor by profession in his past. अपने past में ये profession से doctor भी था. Now Monsieur Defarge is the servant of Monsieur Manic. Mr. Lorry is friend of Mr. Manic and Miss Lucy is the daughter of Monsieur Manic. तो there are 4 characters. आपको ये 4 characters जो थे Monsieur Manic, Monsieur Defarge, Mr. Lorry and Miss Lucy, ये 4 characters आपको clear हो गए हैं. And in the relationship, what was the relationship in among 4 characters in the story? You have known very well. अब इनका जो relationship था वो भी आप क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं. इनका जो relationship है ये एक दूसरे से related है. Now बेटा summary of the chapter shoemaker. What is the summary of the chapter shoemaker? मैंने बेटा यहाँ पर I have explained you the summary in points. I have explained you the summary in points. After it, I will explain you the chapter. Defarge asked Dr. Manic what he is doing. A first line tells that Defarge asked Dr. Manic what he is doing. Defarge Mr. Manic से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. About his work, what he is doing, what he is making. Then Mr. Manic reports that he is making a lady's shoe. He is making a lady's shoe.
के बारे में पूछते हैं तो वो क्या आंसर देते हैं, 105 नॉर्थ टावर, अपना नेम बताते हैं वो। आई वांट टू आस्क यू बेटा, व्हाई ही रिप्लाइड हिज नेम इन 105 नॉर्थ टावर? यस बेटा, बिकॉज he was called in the prison by this number. He was called in the prison by this number, 105 North Tower. So he replied his name in number. He told that his name was 105 North Tower because he had lost his past. He had lost his all conscience. He had lost his memory about himself, about the relationship, about his business, in everything. He had forgotten everything about his past. In last, Lucy urges that. In last क्या होता है बेटा इस तरीके में, Lucy urges that. लूसी रिक्वेस्टेड करती है उससे, रिक्वेस्ट करती है दैट अरेंजमेंट्स बी मेड फॉर हिज इमीडिएट डिपार्चर, कि उनको ले जाने के लिए सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। लूसी अर्जेस दैट, लूसी रिक्वेस्ट दैट अरेंजमेंट्स बी मेड फॉर हिज इमीडिएट डिपार्चर, दैट ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड अप for his departure. So now beta, I hope beta that you understand about the summary of the chapter, and I begin to summarize this chapter by your book, and if you have any query then ask me on my personal number and in your doubt class. So let's start the chapter to read. Now beta, I want to ask you, there is a picture. Can you tell me whose photos is this? Yes beta, he is Charles Dickens, who is the writer of this chapter, The Shoemaker. He is a famous writer of English literature. Now beta, you have seen the biography of Charles Dickens. Charles Dickens is also known as the name Charles John Huffam Dickens. Was born in Landport, Portsmouth on February 7, 1812. Charles was the second of 8 children to John Dickens. 1786 to 1851. It is the date of birth of his father 1786 and date of death 1851. Is a clerk in the Navy Pay Office, and his wife Elizabeth Dickens 1789 and 1863. The Dickens family moved to London in 1814 and 2 years later to Chatham, Kent, where Charles spent early years of his childhood. Due to the financial difficulties, they moved back to London in 1822, where they settled in Camden Town and a poor neighborhood of London. The defining moment of Dickens' life occurred when he was 12 years old. As I have told you about the difficulties that he faced in his early age, his father, who had a difficult time managing money and was constantly in debt, was imprisoned in Marshallia debtors' prison in 1824. Now beta, I shall explain you. Now beta, I shall explain you the chapter with your test book. Read a story about an imprisoned shoemaker. Beta, as you know, the shoemaker is in the prison. ये जो shoemaker है बेटा वो जेल में है, prison में है,
और Defarge and Lorry enters in the attic. Now start the chapter. Good day, said Monsieur Defarge, looking down at the white head that bent low over the shoemaking. It was raised for a moment, and a very faint voice responded to the greeting as if it were at a distance. Good day. मॉन्सियर डिफार्जे एंट्री करते हैं बेटा अंदर, और वहाँ पर एक मतलब पर्सन है, शू मेकर. ही वॉज बिजी इन हिज वर्क, और उससे ग्रीटिंग करते हैं गुड डे, बट हिज वॉइस वॉज वेरी लो एंड एज अ वेरी फेंट वॉइस responded very slow, like he was sitting at a distance, and he said, Monsieur said, good day. You are still hard at work, I see. ये डिफार्जे हैं जो शू मेकर से बोल रहे हैं कि आप अभी तक इतनी मेहनत कर रहे हैं. After a long silence, the head was lifted for another moment, and the voice replied. बहुत देर के बाद उस व्यक्ति ने अपना सिर ऊपर किया और रिप्लाई किया, यस आई एम वर्किंग. द फेंटनेस ऑफ द वॉइस वॉज पिटीएबल एंड ड्रेडफुल. इट वॉज नॉट द फेंटनेस ऑफ फिजिकल वीकनेस, दो confinement and the hard fare no doubt had their part in it. It was the faintness of solitude and disuse. Now beta, confinement, the state of being forced to stay in a closed space or prison. तो यहाँ पर वो रिप्लाई करते हैं शू मेकर जो हैं डिफार्जे को कि हाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं अभी तक वर्क कर रहा हूँ. और उनकी आवाज़ जो थी बेटा वो काफ़ी स्लो थी, और वो क्या थे, कहाँ रह रहे थे, वो प्रिजन में थे. जैसे कि किसी को फोर्सफुली वहाँ बंद कर दिया जाता है, और फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक थे और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लोनलीनेस फील कर रहे थे, मीन्स अकेलापन. आई वॉन्ट सेड डिफार्जे हु हैड नॉट रिमूव्ड हिज गेज फ्रॉम द शू मेकर टू लेट इन अ लिटिल मोर लाइट हियर, यू कैन बियर अ लिटिल मोर. अब डिफार्जे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी लाइट और होनी चाहिए. शू मेकर से बोलते हैं. द हाफ ओपन डोर वॉज ओपन अ लिटिल फर्दर. अ ब्रॉड रे ऑफ लाइट फेल इन टू द गैरेट. जो आधा खुला हुआ गेट था वो अभी आगे और खुला, और थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी लाइट अंदर आई गैरेट में. गैरेट मीन्स बेटा एटिक. And showed the workman with an unfurnished shoe upon his lap, pushing in his labor. His few common tools and various scraps of leather were at his feet and on his bench. अब जब उसने शू मेकर ने बेटा, when the shoemaker saw more light in the attic, जब शू मेकर ने अधिक लाइट को अपने रूम में देखा तो वो परेशान हो गया, अफ्रेड हो गया. उसके बेंच के पास ही उसको शू मेकिंग करने के लिए जो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बेंच के पास ही पड़े हुए थे. ही हैड अ वाइट बियर्ड, रेजली कट बट नॉट वेरी लॉन्ग, अ हेलो फेस एंड एक्सट्रीमली ब्राइट आइज. हिज येलो रेजेस ऑफ साइड ले ओपन एट द थ्रोट एंड शोड हिज बॉडी टू बी विदर्ड. उसकी जो बियर्ड थी बेटा वो वाइट हो चुकी थी. रेजली मीन्स उसके जो कपड़े थे, रेजली कट, उसमें जो कपड़े थे उसके उनमें कट लगे हुए थे. बट नॉट वेरी लॉन्ग, हेलो फेस, उसका चेहरा जो था वो हॉलो फेस था, उस पर किसी तरीके का कोई ग्लो नहीं था. एंड एक्सट्रीमली ब्राइट आइज, उसकी आंखों में चमक थी. हिज येलो रेजेस ऑफ साइड ले ओपन एट द थ्रोट, उसकी जो साइड थी येलो कलर की वो उसका गला ऊपर से खुला हुआ था. एंड शोड हिज बॉडी टू बी विदर्ड एंड वॉर्न, और उससे ये दिखाई दे रहा था कि उसकी बॉडी में कितने रिंकल्स पड़े हुए हैं. ही एंड हिज ओल्ड कैनवास फ्रॉक, लूज स्टॉकिंग एंड ऑल हिज पुअर टैटर्स ऑफ क्लॉथ्स हैड इन अ लॉन्ग सेक्लूशन फ्रॉम डायरेक्ट लाइट एंड एयर. अब बेटा जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसने जो ऊपर से जो वर्क करते हैं शू मेकर या अदर जो भी वर्क करते हैं ये लोग, जैसा कि टेलर होता है या फिर शेफ होते हैं, ये ऊपर से एप्रिन टाइप से एक फ्रॉक सी पहनते हैं. तो वो भी उसकी क्या थी,
अ टॉर्न पोजिशन में थी, टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथिंग, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था वो। द शूमेकर नेवर लुक्ड एट द फिगर बिफोर हिम without first looking down on his side of him, then on that, as if he had lost the habit of associating place with sound, he never spoke, without first wandering in this manner and forgetting to speak. Here beta, the writer told us about shoemaker. यहाँ पर जो राइटर है वो हमें शूमेकर के बारे में बता रहा है कि ये जो फिगर था, ये जो पर्सन था, वो शूमेकर ने ऐसा लग रहा था पहली बार देखा है, और उसे बोलने की हैबिट भी नहीं थी, क्योंकि वो उस एटिक में, उस शेल में, प्रिजन में जो सेल होती है उसके लिए बात की जा रही है, वहाँ वो अकेला ही रहता था, तो उसे हैबिट भी नहीं थी बेटा बोलने की। वहाँ पर उसने कभी कोई साउंड सुना भी नहीं, और ही नेवर स्पोक, वो कभी बोला ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो बोलने की जो कैपेसिटी है वो खो चुका है। विदाउट फर्स्ट वॉन्डरिंग इन दिस मैनर, वो पहली बार इस तरीके से किसी से बात कर रहा है। नाउ मिस्टर लोरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड, लीविंग लूसी द शूमेकर्स डॉटर बाय द डोर। अब जो मिस्टर लोरी हैं वो धीरे से अंदर आते हैं, और जो लूसी हैं उनकी शूमेकर की बेटी, उसको दरवाजे के पास ही छोड़ देते हैं। वैन ही स्टूड फॉर अ मिनट और टू बाय द साइड ऑफ डिफार्जे द शूमेकर लुक्ड अप। जब वो 1 या 2 मिनट के लिए डिफार्जे के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो शूमेकर उसकी तरफ देखते हैं। ही शोड नो सरप्राइज एट सीइंग अनदर फिगर, और दूसरे फिगर को देखकर उन्हें किसी प्रकार का कोई सरप्राइज नहीं होता। यू हैव अ विजिटर यू सी, साइड मॉन्सियर डिफार्जे, व्हाट डिड यू से, हियर इज़ अ विजिटर। आप यहाँ पर जो डिफार्जे हैं वो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, किससे, मिस्टर लोरी से, कि आप इनसे मिलना चाहते हैं। व्हाट डू यू से, आप क्या कहना चाहते हैं। हियर इज़ अ विजिटर। द शूमेकर लुक्ड अप एज बिफोर बट विदाउट रिमूविंग अ हैंड फ्रॉम हिज वर्क। अब शूमेकर उसकी तरफ देखता है जैसे उसने पहले देखा, लेकिन अभी भी वो अपने हाथों से काम कर रहा है, उसका वर्क से अपना हाथ नहीं हटता। Come said Defarge, here is Monsieur, who knows a well-made shoe when he sees one. Show him that shoe you are making on. Take it, Monsieur. Mr. Lorry took it in his hand. अब यहाँ पर डिफार्जे जो है मिस्टर लोरी से बोल रहे हैं कि अंदर आइए, मॉन्सियर से मिलिए। Who knows a well-made shoe, जो बहुत ही अच्छे जूते बनाने के लिए जाने जाते हैं। और ये देखिए, ये जो वर्क कर रहे हैं शू पर, ये उन्होंने बनाया है। टेक इट, इसे पकड़िए मॉन्सियर। मिस्टर लोरी टुक इट इन हिज हैंड, और मिस्टर लोरी इसको अपने हाथों में ले लेते हैं। टेल मॉन्सियर व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज़ एंड द मेकर्स नेम। अब यहाँ पर जो मिस्टर लोरी हैं वो पूछ रहे हैं डिफार्जे से कि टेल मॉन्सियर व्हाट काइंड ऑफ शू, सॉरी शू मेकर से, कि मॉन्सियर बताइए किस प्रकार का शू है और इसके मेकर का नेम क्या है। देयर वॉज अ लॉन्गर पॉज दैन यूजल बिफोर द शू मेकर रिप्लाइड। जैसा कि सामान्य रूप से होता था कि शू मेकर बहुत ही देर में आंसर रिप्लाई करते थे। आई फॉरगॉट व्हाट इट वॉज यू आस्क्ड मी, व्हाट डिड यू से। यहाँ पर शू मेकर कह रहे हैं कि मैं भूल गया, आपने मुझसे क्या पूछा, रिपीट कर दीजिए। आई सेड कुड नॉट यू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ शू फॉर मॉन्सियर्स इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा कि आप इसकी काइंड नहीं बताएंगे, जो आप शू बना रहे हैं इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब इसकी काइंड क्या है, कैसा शू है ये। इट इज़ अ लेडी शू, ये एक लेडी शू है। इट इज़ अ यंग लेडीज वॉकिंग शू, ये एक यंग लेडी का वॉकिंग शू है। इट इज़ इन द प्रेजेंट मोड, आई हैव नेवर शो मोड, आई हैव हैड अ पैटर्न इन माई हैंड। ही ग्लांस एट द शू विथ सम लिटिल पासिंग टच ऑफ प्राइड। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मोड मैंने कभी देखा नहीं। किसने कहा बेटा, शू मेकर ने। शू मेकर ने बताया कि ये मोड जो है, मोड से मीन्स अ फैशन, इस फैशन का, इस काइंड का शू मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे हाथों से ये ट्रेड जो था वो बन गया, ये मोड बन गया और मैंने इसको बना दिया। एंड द शू मेकर्स नेम सैड डिफार्जे, और डिफार्जे ने पूछा शू मेकर का नेम क्या है, जिसने मेकर का नेम क्या है, जिसने इसको बनाया है। नाउ डैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड, ही लेड द knuckles of the right, knuckles means beta fingers, of the right hand in the hollow of the left, and then he knuckles of the left hand in the hollow of the right. means जब वो शू में जब शू बना रहा था, शूज़ बनाने का काम कर रहा था, तो जब वो राइट हैंड से काम करता तो लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को शू में डाल देता, और जब लेफ़्ट हैंड से काम करता तो राइट हैंड की फिंगर्स को शू में डाल देता, और उसकी क्या कर रहा था, वो स्टिचिंग कर रहा था, उसकी सिलाई कर रहा था।
hang across his beard chin and show on in regular changes without movements intermission. The task of recalling him from the vagrancy into which he always sank when he had spoken. Vagrancy means बेटा होमलेसनेस। तो जब भी वो कभी कुछ कहता शू मेकर, तो हमेशा उसके वॉइस से जो एलोनीनेस का एलोन जो रहने का फीलिंग था, सॉलिट्यूड जिसे आप बोल सकते हैं, वो हमेशा उससे शो होती थी। When he had spoken was like recalling some very weak person from a swoon. Swoon means faint, मतलब परेशान, ट्रबल्ड पर्सन। जब भी वो बोलता तो ऐसा लगता जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा फेंट पर्सन की वॉइस है। और endeavoring in the hope of some disclosure to stay the spirit of a fast dying man. Did you ask me for my name? क्या आपने मुझसे मेरे नेम के लिए पूछा? यहाँ पर जो शू मेकर हैं उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया, क्योंकि अभी पूछा था ना मेकर्स नेम क्या है। आपको याद है अभी पूछा था ये किस काइंड का शू है और इसके मेकर्स का नेम क्या है। तो काइंड शू उसने बता दिया था कि दिस इज़ अ लेडी शू एंड नाउ ही आस्क डिड यू आस्क मी फॉर माई नेम, क्या आपने मुझसे मेरे नेम के लिए पूछा। एस्ट्राइडली आई डिड 105 नॉट टावर इज़ दैट ऑल। तो यहाँ पर जो शू मेकर हैं वो आंसर कर रहे हैं कि माई नेम इज़ 105 नॉट टावर। 105 नॉट टावर with a weary sound that was not a sigh nor a groan. He went to work again until the silence was again broken. इतना कहने के बाद शू मेकर फिर से अपने वर्क में बिजी हो गया। उसने किसी प्रकार की कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स को वहाँ पर वियर नहीं किया। ही हैगर्ड आइज टर्न टू डिफार्जे। हैगर्ड मीन्स बेटा वरीड, सफरिंग, एस्क्यूटेड एंड अनवेल। उसने डिफार्जे की तरफ परेशानी से देखा। एज इफ ही वुड हैव ट्रांसफर्ड द क्वेश्चन टू हिम बट एज नो हेल्प केम फ्रॉम दैट क्वार्टर दे टर्न बैक ऑन द क्वेश्चनर व्हेन दे हैड शॉट द ग्राउंड। मीन्स क्या था कि जब उसने शू मेकर ने डिफार्जे की तरफ देखा तो उन्होंने ऐसा फील किया कि उससे कुछ चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। आई एम नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। नो, आई वॉज नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो डिफार्जे और मिस्टर लोरी हैं वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। वो ये कहना चाहते हैं कि वो इस बात को जाने कि वो शू मेकर नहीं है व्यवसाय से। आई वॉज नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। वो चाहते हैं कि जो मॉन्सियर हैं, मैनेट हैं, वो इस बात को फील करें। आई लर्नड इट हियर, आई टॉट माई सेल्फ, आई आस्क लीव टू। तो वो कहते हैं कि मैंने इसको यहीं सीखा। आई वॉज नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड। मैं व्यवसाय से शू मेकर नहीं हूँ, मैंने इसको यहीं सीखा। कहाँ सीखा? प्रिजन में। ये सीन कहाँ का है बेटा? ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और ये जो सीन क्रिएट हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं ये सीन कहाँ का है? यस बेटा, दिस सीन इज सिचुएटेड इन दिस सीन इज इन द प्रिजन। ये जो सीन है वो जेल के अंदर का है। और उसने कहा कि मैंने इस व्यवसाय को यहीं पर सीखा। He lapsed away again for minutes. His eyes came back slowly at least to the face from which they had wandered. When they rested on it, he started and resumed in the manner of sleeper. That moment awake, reverting to a subject of the last night. Reverting बेटा going back. वो उसी सब्जेक्ट पर, उसी टॉपिक पर वो लोग बातें करते रहे। I asked leave to teach myself and I got it with much difficulty after a long while and I have made shoes ever since। यहाँ पर शू मेकर बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हुई थी, लेकिन जब मैंने कठिन परिश्रम किया तो लास्ट में मैं इस चीज़ को सीख गया। As I held out his hand for the shoe that had been taken from him, Mr. Lorry said, still looking steadfastly in his face, Monsieur Manet, do you remembering nothing of me? तो उसके हाथ से जब वो शूज़ उसने लिया तो यहाँ पर जो मिस्टर लोरी हैं वो शू मेकर से पूछ रहे हैं कि मिस्टर मैनेट, क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी? क्या आप मेरे बारे में कुछ याद नहीं रखते? सब भूल गए?
द शू ड्रॉप टू द ग्राउंड। अब उसके हाथों से जो शू था, जो शूज वो पकड़ा हुआ था, वो उसके हाथों से नीचे गिर गया। एंड ही सैट लुकिंग फिक्सली एट द क्वेश्चनर, और वो उस क्वेश्चनर की तरफ देखने लगा। मॉन्सियर मैनेट, मिस्टर लोरी लेड हिज हैंड अपॉन डिफार्जेस आर्म। मॉन्सियर मैनेट, मैं मिस्टर लोरी, और वो डिफार्जे की आर्म को भी ऊपर उठाता है। डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ दिस मैन? क्या आपको इस व्यक्ति के बारे में भी कुछ याद नहीं है? लुक एट हिम, इसकी तरफ देखिए। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए। इज़ देयर नो ओल्ड बैंकर? इज़ देयर नो ओल्ड बैंकर? नो ओल्ड बिजनेस? नो ओल्ड सर्वेंट? नो ओल्ड टाइम राइजिंग इन योर माइंड? मॉन्सियर मैनेट, अब वो लोरी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस्टर लोरी अपने मालिक से, अपने मास्टर से बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको क्या अपने ओल्ड बैंकर्स के बारे में, ओल्ड बिजनेस के बारे में, ओल्ड सर्वेंट के बारे में, ओल्ड टाइम के बारे में आपके माइंड में कुछ भी नहीं है? आप डिफार्जे को भी भूल गए, आप मुझे भी भूल गए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैनेट से क्वेश्चन कर रहे हैं। As the shoemaker sat looking fixedly by turns, Mr. Lorry and at Defarge, some long, obliterated marks of an actively intent intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. अब क्या हुआ बेटा कि जो शू मेकर हैं वो 1 by 1 एक एक करके 1 by 1 क्या कर रहे हैं, कभी डिफार्जे की तरफ और कभी लोरी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी सारी मेमोरी जो है वो ऑब्लिटरेटेड हो चुकी है, मीन्स डेस्ट्रॉयड हो चुकी है, वो लॉस्ट कर चुकी है अपनी मेमोरी को। कोई भी साइन उन्हें इंटेलिजेंसी का अपने माइंड में याद नहीं आ रहा, केवल एक मिस्ट सी, मतलब एक धुंधलापन सा छाया हुआ है। दे वर ओवर क्लाउडेड अगेन, वो फिर से अंधेरा सा छा जाता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। दे वर फेंटर, दे वर गोन, वो सब कुछ उनके माइंड से जा चुका है। बट दे हैड बीन देयर, लेकिन वो लोग अभी तक वहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन द फेयर यंग फेस ऑफ हर who had crept along the wall to point where she could see him, and where she now stood looking at him with hands which at first had been only raised in frightened compassion, if not even to keep him off and shut out the sight of him, but which were now extending towards him, trembling with eagerness to hold his face and love it back to life and hope. So exactly was the expression repeated on her face. अब बेटा जो लूसी है, जो अपने फादर को छिपकर वहाँ दरवाजे के पास खड़े होकर देख रही है, उसके माइंड में अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। वो बहुत ज़्यादा ईगरनेस फील कर रही है अपने फादर से क्वेश्चंस करने के लिए, उनके पास जाने के लिए। बहुत ज़्यादा वो परेशान है, डरी हुई भी है कि उसके फादर की कंडीशन क्या हो गई है। Darkness had fallen on him its place. He looked at the two less and less attentively, and his eyes in gloomy abstraction. Abstraction means बेटा state of being lost in thought, मतलब वो थॉट अपने विचारों में खो जाता है, उनकी तरफ बार बार देखता है और अपने विचारों में खो जाता है। एंड लुक्ड अबाउट हिम इन द ओल्ड वे, फाइनली विद अ डीप लॉन्ग शाई ही रिज्यूम्ड हिज वर्क, और अंत में एक लंबी सांस लेकर वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं आता। हैव यू रिकॉग्नाइज हिम मॉन्सियर? आस्क्ड डिफार्जे इन अ विस्पर। अब डिफार्जे जो हैं वो धीरे से पूछते हैं, हैव यू रिकॉग्नाइज हिम मॉन्सियर? क्या मॉन्सियर आपने उसको पहचान लिया? किसके लिए पूछ रहे हैं, किसको पहचान लिया? मिस्टर लोरी को। यस, फॉर अ मोमेंट एट फर्स्ट आई थॉट इट्स क्वाइट होपलेस, बट आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन फॉर अ सिंगल मोमेंट द फेस दैट आई वंस न्यू सो वेल। लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आंसर जो होगा वो यस में आएगा। फॉर अ मोमेंट, एट फर्स्ट मैंने सोचा, लेकिन मैंने अपने आप को निराश फील किया। आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन, मैंने बिना क्वेश्चन किए ही देखा कि उनके फेस पर इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं था कि उन्होंने किसी को भी आइडेंटिफाई किया हो। हश, लेट्स ड्रॉ फर्दर बैक। हश, और हश मीन्स यहाँ पर हियर इज़ द साइन ऑफ साइलेंस। सी हैड मूव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द गैरेट, और जो लूसी है वो धीरे से साइलेंस तरीके से दीवार के सहारे गैरेट की तरफ बढ़ रही है। वेरी नियर टू द बेंच ऑन विच ही सैट, और वो उस बेंच के बहुत ज़्यादा पास में है जिस पर शू मेकर बैठा हुआ है।
There was something awful in his unconsciousness of the figure that could have put out its hand and touched him as he stood over his labor. अब उसके मन में ये अनकॉन्शियसनेस मतलब उस फिगर को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो सोच रही है कि उन हाथों को वो अपने हाथों से एक बार टच करे जिन हाथों से वो इतना कठिन काम कर रहा है. इट हैपन्ड एट लेंथ दैट ही हैड द ओकेजन टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड. ये क्या है, ये समय का ही तो. इट हैपन्ड एट लेंथ, इतने दिनों में ऐसा हो गया. जो उसकी बेटी है वो सोचकर परेशान है, इतना चेंज हो गया कि जो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट उनके हाथों में रहते थे और आज उनके हाथों के इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो गए. मीन्स जो कभी एक अपने पास्ट में डॉक्टर हुआ करता था, आज वो इंसान क्या कर रहा है, जूते बना रहा है, शू मेकिंग कर रहा है. For his shoemaker's knife, it lay on that side of him which was not the side on the which she stood. He had taken it up and was stooping to work again. उसने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको उठाया और फिर से अपना काम करने लगा. When his eyes caught the skirt of her dress, जब वो अपना इंस्ट्रूमेंट उठा रहा था तो उसने एक स्कर्ट को देखा, ड्रेस को देखा. He raised them, उसने ऊपर देखा and saw her face, और उसके चेहरे को देखा. The two spectators started forward but she stayed them with the motion of her hand. जो दो स्पेक्टेटर्स थे, कौन कौन थे टू स्पेक्टेटर्स, बेटा डिफार्जे और लोरी, उन्होंने उसको रोका लेकिन लोरी ने हाथ से इशारा कर दिया कि वो रोके नहीं और वो आगे बढ़ गई. She had no fear of his striking at her with the knife though they had, और उसे अपने फादर के जाने में किसी प्रकार का कोई फियर नहीं था, डर नहीं था. The two spectators started forward but she stayed them with a motion of her hand. मतलब उसे रोकने पर भी वो आगे बढ़ गई. डिफार्जे और लोरी से उसने मना कर दिया और उसे अपने फादर के पास जाने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था. He stared at her with a fearful look. उसने बहुत ज़्यादा डरावने ढंग से उस लड़की की तरफ देखा, शू मेकर ने. And after a while his lips began to form some words. ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता है, उसके लिप्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो अपने होठों से कुछ कहना चाहता है. दो नो साउंड प्रोसीडेड फ्रॉम देम, लेकिन उनमें से कोई भी साउंड नहीं निकला. जो लूसी हैं उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसके फादर उससे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके होठों से कुछ वर्ड्स नहीं निकले. बाई डिग्रीज इन द पॉजेस ऑफ हिज क्विक एंड लेबर्ड ब्रीथिंग ही वॉज हियर टू से. अब वो कुछ मतलब इतना वर्क करने पर गहरी सांस भी ले रहा है, अपने आप को रोका हुआ भी है, लेकिन ही वॉज हियर टू से, वो सुन रहा है कुछ कहने के लिए. व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस. ना बेटा जो लूसी है वो अपने फादर से पूछना चाहती है कि उन्होंने अपना ये क्या हाल बना लिया है, क्योंकि 18 सालों से लूसी अपने फादर से बिल्कुल अलग थी. जो शू मेकर है, मॉन्सियर मैनेट जिसका नेम है बेटा, रियल कैरेक्टर मॉन्सियर मैनेट, उसको 18 साल तक जेल की सज़ा हुई थी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की बात है ये. तो 18 साल से लूसी अपने फादर से दूर थी. विद टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस सी पुट हर 2 hands टू हर लिप्स एंड किस्ड देम टू हिम. उसके आँखों से आंसू निकल आते हैं और उसके फेस पर गिरने लगते हैं. सी पुट हर हैंड्स टू हर लिप्स, वो अपने हाथों को अपने चेहरे से लगाती है. एंड किस देम टू हिम, और उनको चूमती है. यू आर नॉट द गोलर्स डॉटर, तुम चीफ जेलर की बेटी नहीं हो. गोलर्स डॉटर बेटा, गोलर्स हियर इज़ द मीनिंग ऑफ चीफ जेलर. सी साइड नो, नहीं. हु आर यू, तो आप कौन हैं. नॉट येट ट्रस्टिंग द टोन्स ऑफ हर वॉइस, उसे अभी भी उसकी आवाज़ पर विश्वास नहीं था. किसे नहीं था, शू मेकर को. शी सैट डाउन ऑन द बेंच बिसाइड हिम, वो उसके पास ही उस बेंच पर बैठ जाती है. He recoiled, but recoiled means बेटा moved body quickly away from somebody. वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे कर लेता है, पीछे हट जाता है. But she laid her hand upon his arm, लेकिन वो अपने हाथ को उसके आर्म पर रख लेती है. A strange thrill struck him when she did so. एक बहुत सी अजीब सी संवेदना उसके अंदर आती है, कोई अजनबी जैसी, एक बेटी जैसा उसको एहसास नहीं होता जब वो ऐसा करती है. एंड विजिबली पास्ड ओवर हिज फ्रेम, ही लेट द नाइफ डाउन सॉफ्टली, वो नीचे धीरे से अपना नाइफ रख देता है. एज ही सैट स्टेयरिंग एट हर, और उसकी तरफ देखने लगता है. एडवांसिंग हिज हैंड लिटिल बाई लिटिल ही टुक इट अप एंड लुक्ड एट इट.
In the midst of the action he went astray and with another deep sigh fell to work at his shoemaking. काफ़ी देर उसकी तरफ देखने के बाद जो मिस लूसी हैं वह उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और फिर से अपने वर्क में बिज़ी हो जाता है। तो हियर इज़ द स्टोरी ऑफ शू मेकर। बेटा आपने चैप्टर को रीड किया और आपने समझा कि स्टोरी में क्या है। ये जो शू मेकर है इसको 18 साल की जेल होती है और ये अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। जेल होने के बाद ये इतना शॉक्ड हो जाता है, इतना इसको आघात पहुंचता है, इतना परेशान होता है कि अपनी मेमोरी को खो देता है। और जब ये अपनी मेमोरी भूल जाता है, जब इसे अपना कंसाइंस याद नहीं रहता, तो ये अपने फ्रेंड के बारे में, अपने सर्वेंट, अपनी बेटी सबको भूल जाता है। तो नाउ बेटा आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। नाउ स्टूडेंट्स, after reading the chapter, I hope that you understand about the story of the shoemaker very well. Now beta, still you have any query about this chapter, about the characters and about the summary of shoemaker? You have question me, you can ask me your questions, your queries in your doubt class. So beta, thank you for today.